Very good morning. Very good morning. We have studied in the last class regarding the Hufland's comments, and before that we have studied regarding the totality of symptoms, and before that we have studied the portrait of disease. So we are going to quickly revise the last classes, and then we will proceed to the next aphorism. Portrait of disease is basically entire collection of signs and symptoms due to each and every region, which are collected by physician from the patient and from the relatives and by his own observation. The symptoms which are felt by the patient are called subjective symptom, and the symptoms which are observed by others are objective symptom. And these all subjective and objective symptoms completely makes a whole picture which is called portrait of disease. When we remove the symptoms due to manifest, exciting and maintaining cause from this portrait of disease, then we got the totality of symptoms, which is the sole expression of vital force, which is the sole expression of the vital force for the which is the sole expression of the vital force by which it conveys its message to the physician that yes, I need this medicine. You have to individualize through the totality of symptoms only. After the totality of symptoms, that is after the aphorism 8, we have studied, after the aphorism 7 we have studied aphorism 8. In aphorism 8 we have just read the history, why this aphorism was needed. This was basically neutralize the harsh comment of Hufland, who says that homeopathy removes sign and symptom but disease still remains inside. But Hahnemann just ridiculed him that how we can say that after the removal of entire perceptible phenomena, mind it, entire perceptible phenomena, all the sign and symptoms, there should or could remain inside the body except health, So Hahnemann just neutralized his comments in a very intelligent manner. And so we now proceed to the next aphorism, aphorism 9. In aphorism 9, we all have studied aphorism 9 in our first year, second year and even third year, and we know this is basically definition of vital force. The aphorism 9 says, in the healthy state of the man, the spiritual vital force, autocracy, I am just reading, in the healthy state of the man, the spiritual vital force, autocracy, in the healthy state of the man, the spiritual vital force, autocracy, the dynamics that animates the material body, under bracket organism, rules with unbounded sway and retains all parts in admirable harmonious operation as regard of both sensations and functions. ध्यान दीजिएगा, sensations and functions है, sensation and function नहीं है, ठीक है, multiple sensations, multiple functions, as regards of both sensation and functions, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this healthy instrument for higher purposes of our existence, higher purposes of our existence. ध्यान दीजिएगा, पर्पस नहीं है, पर्पसेज है, ठीक है. वो कह रहे हैं बेसिकली यहाँ वाइटल फोर्स हेल्दी स्टेट में कैसे बॉडी को एनिमेट करता है, कैसे बॉडी को रन करता है, हाउ वाइटल फोर्स इन हेल्दी स्टेट एनिमेट्स द बॉडी, हाउ इट रन्स द बॉडी, हाउ इट रन्स द माइंड, all is described in this aphorism. Okay, so in this aphorism Hahnemann says that in the healthy state of the man, obviously in healthy state what happen, there is normal sensation, normal function, power of self preservation by means of healthy operation of vital force, healthy operation because of the healthy operation of vital force we will derive healthy sensation, healthy function, power of self preservation. So he says in the healthy state of the man, the spiritual vital force, this is the character of vital force. The vital force is
spiritual. It is not materialistic. Mind it is not something material. In the healthy state of the man, the spiritual vital force, the autocracy, vital force is automatic. It acts by itself to certain limitation. This we will study. In the healthy state of the man, the spiritual vital force, autocracy, that animates the material body. ये vital force क्या करता है? What this vital force do? It animates. It just animates the material body. Means vital force animates this body. If the vital force is healthy, then only it can animate in a healthy manner and retains all parts in admirable harmonious operation. ये बॉडी को वाइटल फोर्स कैसे ये करता है? हार्मोनियस ऑपरेशन को, बॉडी के हार्मोनियस ऑपरेशन को वाइटल फोर्स का नॉर्मल फंक्शनिंग इंश्योर करता है. हार्मोनी का मतलब तारतम्यता से. अगर मेरा ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट करके मेरे कान के पास आए यहाँ पे, तो जो भी इस साइड के मसल्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी वेंट्रल साइड के मसल्स हैं, जो भी डोर्सल साइड के मसल्स हैं, वो सारे रिलैक्स करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है. और ये ऐसे फंक्शन करेगा जैसे कि एज ए होल एक यूनिट काम कर रहा है. इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है. एक साथ हार्मोनी एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ हार्मोनियस वे में ऑपरेट करेगा और ऑपरेट कराएगा. ये वाइटल फोर्स, हेल्दी वाइटल फोर्स का कैरेक्टर है कि ये जब बॉडी को एनिमेट करेगा तो ये हार्मोनियस वे में ऑपरेट करेगा. दिस इज हार्मोनियस ऑपरेशन. हम सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको फील नहीं हो रहा है कि हम हैं. फील हो रहा है? आपके पास सर है, आपको फील हो रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स हार्मोनियस रूप में ऑपरेट कर रहा है. वाइटल फोर्स इज ऑपरेटिंग इन अ हार्मोनियस वे. द मोमेंट इट लिफ्ट्स द हार्मोनी, देन यू आर इन डिजीज. जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपके पास सर है, इसका मतलब आपको सर दर्द हो रहा है. इसका मतलब कि आप हेल्दी नहीं हैं. इसका मतलब वाइटल फोर्स एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है. सो हेल्दी वाइटल फोर्स जो है, ये क्या करता है? बॉडी को तीन चीज देता है. ये हेल्दी वाइटल फोर्स बॉडी को नॉर्मल सेंसेशन देता है, ये आपको नॉर्मल फंक्शन देता है, और इस हेल्दी वाइटल फोर्स से हमको पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन मिलता है. ठीक है? नॉर्मल सेंसेशन मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, और अभी किसी का ध्यान व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि अभी हमारा टारगेट है पढ़ना. अगर इस समय मेरा कंसंट्रेशन कहीं और फोकस होके जा रहा है, देन दिस इज नॉट नॉर्मल सेंसेशन, दिस इज नॉट नॉर्मल फंक्शन. ऑब्वियसली जब नॉर्मल सेंसेशन नहीं होगा, नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, तो पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे होगा? मैं पढ़ा रहा हूं, आप कहीं और फोकस हो रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? फेल्यूर होगा. दिस मीन्स this is loss of power of self preservation. But when the vital force is operating in a harmonious way, in a normal way, then you will derive from it normal sensation, normal function, and finally the power of
सेल्फ प्रिजर्वेशन, पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन से मैं बहुत गर्मी से आ रहा हूँ। आप लोग फिजियोलॉजी पढ़े हुए हैं, फिजियोलॉजी पढ़े हुए हैं, तो फिजियोलॉजी में आप लोगों को ध्यान होगा कि जब आदमी बहुत गर्मी में जाता है तो क्या होता है, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म काम करता है हमारे बॉडी के इंटरनल हीट को बाहर लाने के लिए। क्योंकि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस एनर्जी डिराइव किया जा रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन से, और उस सेलुलर रेस्पिरेशन में वी यूज ओनली 45% ऑफ द एनर्जी, एंड रेस्ट जो है हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है, रेस्ट हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है। उस हीट के चलते बॉडी का कोर टेम्परेचर हाई होगा, बाहर से भी टेम्परेचर हाई है। बॉडी का कोर टेम्परेचर अगर हाई होगा तो फिर बॉडी के अंदर के बॉडी के हार्मोन्स, बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सारे एंजाइम्स एक ऑप्टिमम पीएच पे ही काम कर सकते हैं, ऑप्टिमम पीएच पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होता है तो हमारे एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू करेंगे और हम सही से काम नहीं कर सकेंगे, नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो इंटरनल आपको ऑलमोस्ट 54-55% जो हीट जनरेट हो रहा है, वो हीट को शरीर से बाहर ला के उसको लूज करना है। अगर लूज नहीं करेंगे तो इंटरनल टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि अंदर का पानी, अंदर जो सेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बॉयल करने लगेगा, और बॉयल करने लगेगा मतलब हम खत्म हैं ऑब्वियसली। सो हमारे बॉडी में मैकेनिज्म बना हुआ है कि इंटरनल हीट्स को बाहर लाके लूज किया जाए, सो दैट कि इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर ये इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो हम खुद को सेल्फ प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। हेल्दी स्टेट ऑफ द मैन, हेल्दी स्टेट ऑफ मैन में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जब हीट बढ़ने लगेगा, हीट ज़्यादा मतलब ये होने लगेगा अंदर, तो क्या होगा कि जो बाहर के वेसल्स हैं, स्किन के ऊपर जो जितने वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो सारे डायलेट करेंगे और अंदर से ब्लड आएगा और वो बाहर जस्ट स्किन पे रेडिएट करेगा, हीट को रेडिएट करेगा। बट क्या है कि बाहर भी गर्मी है, अंदर भी गर्मी है, तब तो उस कंडीशन में क्या करेगा हमारा बॉडी कि वाटर जो है पर्सपायरेशन के रूप में निकालेगा, और जब सरफेस पे पर्सपायरेशन आएगा तो वो पर्सपायरेशन जब इवेपोरेट होगा तो लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर कितना होता है, याद है? 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। सो 1 ग्राम पानी, अगर 1 ग्राम पर्सपायरेशन, 1 ग्राम पसीना आपका अगर इवेपोरेट होता है तो यू आर लूजिंग 540 कैलोरीज। सो इस कंडीशन में बॉडी क्या करता है कि पसीना निकालता है और उस पसीना के थ्रू काफी तेजी से हीट लॉस करता है। तो दिस इज द सेल्फ प्रिजर्विंग मैकेनिज्म ऑफ वाइटल फोर्स। अब पसीना से भी राहत नहीं मिल रहा है आपको, इतना पसीना निकल रहा है, तो आपका माइंड क्या कहेगा, अरे यार कहीं पंखा है, कहीं एसी है, वहां जाके बैठेंगे, पंखा में जाके बैठेंगे, एसी में जाके बैठेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि पसीना निकल रहा है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। उस कंडीशन में आपका ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स अपने नॉर्मल फंक्शन को करते हुए, नॉर्मल सेंसेशन को करते हुए, पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए आपको इंड्यूस करेगा कि आपको प्यास लगे, आपका मुंह सूखेगा, आपका गला सूखेगा, आपको प्यास लगेगा। सो देखिए वाइटल फोर्स नॉर्मली कैसे फंक्शन कर रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है अंदर, उसको बाहर लेके आना है सो दैट कि हमारा इंटरनल कोर टेम्परेचर मेंटेन रहे, और इंटरनल कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाइटल फोर्स कैसे कैसे एक्ट कर रहा है। भासोडाइलेशन करेगा। वहीं अगर हीट जो है बाहर में मतलब बहुत ही ठंडा है, उस कंडीशन में बॉडी के हीट को मेंटेन करने के लिए जो पेरिफेरल वेसल्स है उसमें वासो कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो अंदर से हीट बाहर कम से कम आएगा। उसके बाद जो हमारे जो ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं
वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होके ये सारे हेयर्स को ये कर देगा, इरेक्ट कर देगा, सो दैट इसके बीच में एयर ट्रैप हो जाए और वो एयर ट्रैप हो करके एक हीट रेसिस्टेंट मैकेनिज्म करे, सो दैट हम मिनिमम हीट लूज करें। सो वाइटल फोर्स कैसे नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, ये हेल्दी है तो, बट अगर हेल्दी नहीं होगा तो क्या होगा, इसके एबनॉर्मल होगा। सो इन हेल्दी स्टेट में क्या कर रहा है, नॉर्मल सेशन, नॉर्मल फंक्शन और पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। पर ये कर क्यों रहा है, बेसिकली ये कर इसलिए रहा है सो दैट हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जो हायर पर्पसेज ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसके लिए हम एग्जिस्ट करें, हम अपने आप को, हम अपने रेस को एक बेटर लाइफ दे सकें, बेटर हेल्थ दे सकें, ईच एंड एवरीथिंग बेटर दे सकें। सो हेल्दी स्टेट में ऑर्गेनिज्म को ईच एंड एवरीथिंग हेल्दी होगा। वो हेल्दी सोचेगा, वो दूसरे से प्यार करेगा, वो दूसरे का बरकत करने का, दूसरे को प्रोग्रेस कराने का सोचेगा, ये हेल्दी सोच है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हायर पर्पसेज ऑफ एग्जिस्टेंस में वाइटल फोर्स ये नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन और पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के थ्रू हमको पुशअप करेगा। सो इन ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंसेशंस एंड फंक्शंस बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हो दूसरा नॉर्मल नहीं हो तो ऐसा नहीं चलेगा। सेंसेशंस एंड फंक्शन सारे नॉर्मल होने चाहिए, देन वी कॉल इट हेल्दी स्टेट ऑफ वाइटल फोर्स। नेक्स्ट कर रहे हैं हायर पर्पसेज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हायर पर्पसेज का मतलब क्या है, आज मैं एक टीचर के जगह पे खड़ा हूं, आप लोग स्टूडेंट के जगह पे खड़े हैं, तो आज मेरा टारगेट है कि आपको ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से समझाऊं, आपको समझ में आ जाए। और आप लोगों का टारगेट है कि ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन को बढ़िया से पढ़ें और उसको जाके बेड साइड में अप्लाई करें, सो दैट अच्छा से अच्छा सीख कर समाज में अच्छा काम करें। दिस इज द प्रेजेंट पर्पस ऑफ माइंड। ये मेरा अभी जो एग्जिस्ट कर रहा हूं, इस क्लास में एग्जिस्ट कर रहा हूं, ये मेरा अभी का पर्पस है। बट द नेक्स्ट मोमेंट जैसे मैं ओपीडी में जाता हूं तो मेरा पर्पस दूसरा हो जाएगा। ठीक है। सो आप लोग इस एफोरिज्म को बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है, तकलीफ होता है तो हमसे पूछिए। आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।